ناظرین 4 ٹی وی کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. میں ہوں سید باقر. سب سے پہلے 4 ٹی وی کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر. جموں کشمیر میں یوم عاشورہ کے موقع پر امام حسین و شہدائے کربلا کو پیش کیا گیا خراج. سری نگر کے بشمول دیگر اضلاع میں نکالے گئے تعزیہ جلوس. ایل جی منوج سنہا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ و دیگر لیڈران نے تعزیہ جلوسوں میں کی شرکت. شہدائے کربلا کو پیش کیا خراج عقیدت. یوم عاشورہ کے جلسے جلوسوں کا عمل میں آیا. پر امن انعقاد کیے گئے تھے. سول و سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست. وادی کشمیر میں اسکولز کی تعطیلات میں توسیع سے متعلق 7 جولائی کو لیا جائے گا فیصلہ. اور پونچھ میں نوجوان کی پراسرار حالت میں پائی گئی لاش. پولیس نے کیا مقدمہ درج. آج یوم عاشورہ منایا گیا. سب سے پہلے ہم امام عالی مقام امام حسین و شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آپ کو چلے تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہرحال میں پینل سے چاہوں گا کہ کچھ تصاویر بتائیں تاکہ ہم کربلا کے ان مناظر کو دیکھ سکیں. یہ مناظر کربلا کے ہیں. آپ کو بتا دیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حضور کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی و بی بی فاطمہ کے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت عباس، بی بی زینب و بی بی کلثوم کے پیارے بھائی حضرت علی اکبر، علی اصغر، زین العابدین و بی بی سکینہ کے بابا امام عالی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم 61 ہجری 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی میں عراق میں کربلا کے مقام پر اپنے 72 جانثاروں کے ہمراہ شہید کر دیے گئے. سوال یہ ہے کہ معرکہ کربلا آخر کیوں پیش آیا؟ اس سوال کے جواب میں پچھلے 1400 برسوں میں لاکھوں کروڑوں تحریریں رقم ہو چکی ہیں. واقع کربلا کو چند الفاظ میں بیان کر دینا محال ہے. ہزاروں لاکھوں کتابیں بھی لکھ دی گئیں، لیکن واقع کربلا اپنے اندر وہ درس سمیٹے ہوئے ہے جس کو مزید لکھا جاتا رہے گا. کربلا میں امام حسین کا بلند کیا گیا علم اسلام قیامت تک لہراتا رہے گا. تاریخ اسلامی امام حسین سے قبل بھی شہادتوں سے مزین رہی، لیکن شہادت امام حسین شہادت عظمیٰ کہلائی اور شہید ہونے والے امام عالی مقام سید الشہداء. معرکہ کربلا حق و باطل کا ایک ایسا ٹکراؤ تھا جو اپنی مثال آپ ہے. فتح مکہ تک ہونے والے مختلف معرکوں تک ٹکراؤ اس باطل سے تھا جو ظاہر تھا، لیکن معرکہ کربلا نے ایسے چھپے باطل کو بے نقاب کر دیا جس نے قیامت تک اصل ایمان کی پہچان کرا دی. حق سے باطل کو ہمیشہ کے لیے چھانٹ دیا. امام حسین نے صرف یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ یزید کی سوچ، فکر، ارادے اور اس کے فریب کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جو چاہتا تھا کہ شریعت و اسلام کو اپنے تابع بنا لے. امام حسین نے اس وقت یزید اور یزیدیت کو ماننے سے انکار کیا جب یزیدیت اپنے دامیں، درہمیں، سخنیں کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی. وہ جال لالچ، ڈر، خوف، بغض و حسد، دشمنی اور نفاق کی زنجیروں سے ایک دوسرے سے بندھا ہوا تھا. امام علی مقام نے اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب، مصاحبین کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے ایسے وقت رخت سفر باندھا جس وقت حج کی ادائیگی کے لیے مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہو رہے تھے.
در حقیقت سبھی خدا کے گھر کی طرف آ رہے تھے، لیکن امام حسین اس گھر کے خدا کی طرف جا رہے تھے۔ تاریخ اسلامی کا یہ وہ عظیم سفر تھا جو صبح قیامت تک بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ الحمدللہ بتا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی تعریف کیا ہے۔ یہ سفر در حقیقت اصل عبادت کیا ہے، شریعت اگر راستہ ہے تو اس کی منزل کیا ہے۔ در حقیقت امام حسین نے رہتی دنیا تک مومنین کو، مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ بزدلی موت ہے، بہادری زندگی ہے۔ ظلم و ظالم کے خلاف ڈٹ جانا ہی اصل میں حسینیت ہے، اور یہی حسینیت حق پرستوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر برس کی طرح اس برس بھی یوم عاشوراء کے موقع پر عالمی سطح پر سید الشہداء امام علی مقام حضرت حسین اور کربلا میں شہید ہونے والے ان کے تمام جانثاروں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا، اور انہیں اپنے اپنے طریقوں اور مراسم کے ذریعے خراج عقیدت مسلمانوں نے پیش کیا۔ شیعہ مسلمانوں نے تعزیہ جلوس نکالے، اس موقع پر ماتم زنی اور سینہ کوبی کی گئی، حسینی علم نکالے گئے، مساجد اور خانقاہوں میں ذکر حسین و شہدائے کربلا کی یاد میں جلسے و مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ امام علی مقام کے درس شہادت کے پیغام کو علماء، مشائخ و ذاکرین نے بیان کیا۔ اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنے اور باطل یزید و یزیدیت سے اپنی بیزارگی کے اظہار پر زور دیا گیا۔ یوم عاشوراء کے موقع پر سری نگر میں مرکزی تعزیہ جلوس نکالا گیا۔ ہزاروں عزاداروں نے تعزیہ جلوس میں حصہ لیا۔ سری نگر کے بوٹا کدل میں ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے جلوس عزاداری میں شرکت کی۔ ایل جی جموں کشمیر نے بوٹا کدل میں ذوالجناح سے موسوم جلوس میں شرکت کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایل جی اس موقع پر انہوں نے سبیل پر پہنچتے ہوئے لوگوں میں پانی اور شربت تقسیم کیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر عمران رضا انصاری کے بشمول دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ عزاداروں نے سینہ کوبی کرتے ہوئے امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر میں مرکزی جلوس عاشوراء کے موقع پر سول اور سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست کیے گئے تھے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر اور آئی جی پی کشمیر بدھوری نے انتظامی امور کی نگرانی انجام دی۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر کے مرکزی جلوس سے عاشوراء میں شرکت کی اور امام حسین و شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عزاداروں سے ملاقات کی۔ فاروق عبداللہ نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کربلا کے واقعے نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک اور کربلا غزہ اور ایران میں برپا کیا گیا۔ نیتنیاہو سمجھتا ہے کہ وہ ایران کو ختم کر دے گا، لیکن وہ نہ اسلام کو ختم کر پائے گا اور نہ ہی ایران کو۔ ہم ہندوستان کی آزادی کے بعد سے ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں مختلف طریقوں سے تقسیم کیا گیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج یوم عاشوراء کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد کر دے۔ آج ساری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا نے اسلام کو زندہ کیا۔ آج دوسرا کربلا لڑا جا رہا ہے ایران میں۔ نیتنیاہو سمجھتا ہے کہ وہ ایران کو ختم کرے گا، وہ اسلام کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، ایران کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم نہیں تھا جس نے فلسطین کی لڑائی میں ان کی مدد نہیں کی۔ یاسر عرفات سے لے کر واجپئی تک۔ آج یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں پہلے مذہبوں پہ بانٹا گیا، اب ہمیں زبانوں پہ بانٹا جا رہا ہے۔ اردو یہاں کی زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے، اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مراٹھی کو ختم نہیں کر سکتے، تامل کو ختم نہیں کر سکتے۔
बंगाली ख़त्म नहीं कर सकते, बिहार की ज़बान को ख़त्म नहीं कर सकते, गुजराती को ख़त्म नहीं कर सकते, गुजराती ज़बान को नहीं कर सकते। यह है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हर ज़बान का है, हर मज़हब का है, और हिंदुस्तान आगे भी हर मज़हब का और हर ज़बान का रहेगा। अल्लाह इस करबला के दिन पे हमें तौफीक दे कि हम मुसलमान इकट्ठे हो और इकट्ठे रह के इस वतन को बचाएं उस नफरत से जो आज फैल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आईजी कश्मीर वीके वर्दी की निगरानी में आज यौम आशुरा के मौके पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। आईजी कश्मीर ने बोटाकदल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज श्रीनगर के बशमोल कश्मीर भर में पुरअमन व सहल अंदाज में जुलूस मुहर्रम निकाले गए। यौम आशुरा और जुलूसों के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। महकमा ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से श्रीनगर और दीगर इलाकों में खुसूसी ट्रैफिक शेड्यूल जारी किया गया था ताकि ताज़िया जुलूस बगैर किसी खलल के सहल अंदाज में निकाले जा सकें। आज 10 मुहर्रम का जो है यहाँ पे आने वाले अज़ादारों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक विंग में काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पे आने वाले अज़ादारों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बाकी जगहों में भी ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है लोगों को आसानी हो। देखिए, हम लोग काफ़ी एक्सटेंसिव अरेंजमेंट करते हैं, बाकी वाले ज़िलों को भी ये अंदाजा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तो इसलिए रेगुलेशंस केवल शहर श्रीनगर में नहीं है बल्कि बाकी जो इसके एडजेसेंट जिले हैं वहाँ पर भी सेम प्रकार के इंतजाम। As we already conveyed you also that two significant events are going simultaneously. So here in Shahar Srinagar we have made elaborate arrangements for Muharram procession, and we have done multiple security deployments here so that people coming here for procession they don't feel hassle also. श्रीनगर में जुलूस जुलजन्ना के मौके पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। श्रीनगर के बशमोल जम्मू कश्मीर के दीगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में यौम आशुरा के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए गए थे। एक रोज़ कबल ही बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम को ख़तय्यत दे दी गई थी। जिन रास्तों से ताज़िया जुलूस निकाले गए यहाँ एक एक नक्ल हरकत पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अहदेदारों की नज़रें लगी हुई थी। CCTV कैमरों के बशमोल सिक्योरिटी एहलकार छोटी बड़ी इमारतों की छतों से रास्त तौर पर एक एक नक्ल हरकत पर नज़र बनाए हुए थे। गांगो पुलवामा में आज यौम आशुरा के मौके पर ताज़िया जुलूस निकाले गए। इस मौके पर हसनैन मसूदी, अशोक कौल और दीगर सियासी लीडरान ने इमाम अली मकाम को खराज पेश किया। जहाँ तक भाईचारे की बात मैं पहले बताऊं, कई 100 सालों से जो कश्मीर की रिवायत रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख हों, हमेशा एक दूसरे के साथ हर कोई खड़ा रहा है। जहाँ तक एक दूसरे के मजहबी जहाँ इवेंट्स हैं या उनका कोई बड़ा दिन है, दुख सुख है, इसके अंदर हमेशा खड़ा रहे। जैसे आपने बताया, देखिए एक तरफ अमरनाथ की यात्रा है, बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम बरादरी के जो लोग हैं, वो भी अपनी जो सेवा है, बाद भी आज लोग कुर्बानी क्यों ना लग जाए, लेकिन सच का दामन जो है वो नहीं छोड़ना। ये ठीक है, हम अभी देख रहे हैं सारे कश्मीर में हमारे सब लोग इस दिन को मना रहे हैं। ये जो शहादतें हुई हैं, हमारे हज़रत हुसैन की शहादत हुई है, जिन उसूलों को लेकर, जिन प्रिंसिपल्स को लेकर, जिन बातों को लेकर उनने शहादत दी है, हम तो यही मानते हैं, उनको हम याद कर रहे हैं, उन उसूलों को याद, और उसके जो हुकूक है उनको सलब नहीं करना है, हमसाये के हुकूक को सलब नहीं करना है, हमसाये के जो हुकूक है। इमाम आली मुकाम ने हक सदाकत के लिए शहादत दी, आलमी इंसानियत के लिए शहादत दी, और उनका जो जिस के लिए उन्होंने शहादत दी वो रहती दुनिया तक वो याद रहेगा और कायम रहेगा। इसके तई जो हमारी अकीदत है, तो आज का दिन हमें ये दर्स देता है कि हम सदाकत के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए कमर बस्त हो जाए। अपनी खराज इज़्ज़त पेश करता है, या जो बाकी मुल्क से आए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, उनको भी फैसिलिटेट करता है।
वो वही लोग जो इसके साथ वाबस्ते हैं वो उनकी भी वो फैसिलिटेट करते हैं और हर एक कदम उठाते हैं ताकि वो उनके लिए ये सफ़र जो है वो आसान रहे, उनकी जो वहाँ पर उनकी हाज़िरी है वो आसान रहे। तो ये सही बात है। सदर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हुए कहा कि वाक़या करबला ने इस्लाम को ज़िंदा किया है। उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान और साथियों के साथ हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप जानते हैं कि ये आशूरा इस्लाम को हमेशा ज़िंदा करता है। हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है और 10 मुहर्रम को जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए हैं तो उसके बाद ये आशूरा बर्पा हो गया है। और जो करबला में हमारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे ख़ानदान को शहीद किया गया और आई हैव नो वर्ड्स, तो वो हमारे सामने है। और ये जो हमारे शिया भाई जुलूस निकालते हैं और आशूरा में जो जुलजना होता है, ये हमें हर एक मुसलमान को ये मुहर्रमुल हराम है। ये सिर्फ शिया फ़िरके के लिए मुहर्रमुल हराम नहीं है, ये हम सब मुसलमानों के लिए है और इस्लाम का पहला महीना है, हमारे तारीख़ का पहला महीना है और इसी महीने में हर एक फतह हुई है इस्लाम की। और इसमें हम यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि हमारे लिए ईमान और खुशी और अमन आए। उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी ताज़िया जुलूस निकाले गए जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने हिस्सा लिया। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज यौम आशूरा है, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम आज इस दिन को मना रहा है और उन शहदा को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने जानों का जो है नजराना पेश किया। अगर देखा जाए तो इस वक्त हम गांगू पुलवामा में मौजूद है और मुख्तलिफ जो है सियासी पार्टियां हों या मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें हों, उन्होंने यहाँ इस तरह की स्टॉल्स लगाए हैं और इस तरह की सबीलें लगाई गई हैं ताकि अज़ादारों की जो है खातिरदारी की जाए और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो आम लोगों तक पहुँचाया जाए। ज़ाहिर सी बात है इस दिन को याद इसीलिए किया जा रहा है कि बदी कितनी भी ज़ोरवार कितनी हो, चाहे वो उसमें ताकत कितनी हो, लेकिन जो असल में हकीकत है, जो सच्चाई है, उसकी जीत होती है। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। ज़िला कुलगाम में यौम आशूरा के मौके पर ताज़िया जुलूस बरामद किए गए। साहू सचिन में मुनक्किद होने वाली मजलिस में अज़ादारों ने ज़िक्र करबला करते हुए इमाम हुसैन व तमाम शहदाए करबला की बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार किया। DC कुलगाम अत्थर आमिर खान ने सिविल व पुलिस अहदेदारान के हमरा मजालिस और ताज़िया जुलूस में शिरकत की। अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का उन्होंने इज़हार किया। इंतज़ामी उमूर की निगरानी अंजाम दी। इस मौके पर सबीलें लगाई गई जिसमें लोगों में पानी व शरबत तकसीम किए गए। मुकामी ज़ाकिर अहले बैत ने मीडिया से बात करते हुए शहदाए करबला को खराज पेश किया। बेदर्दी के साथ करबला के सरजमीन में शहीद किया। तो ये जो आशूरा है, आशूरा उसी अकीदत का जो है ना एक वो दिन है जिसमें हम ये नबी को कहते हैं, या नबी हम तुम्हारे आल से मोहब्बत करते हैं। हम उस आयत पर अमल करते हैं जो जिसमें हम पर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की वाजिब की गई है। हम उस मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब जब गमगीन हो, महबूब जब अज़ियत व आज़ार में हो तो आशिक जो है ना रोता है, आशिक का दिल जो है ना टूट जाता है। जब भी माशूक पर कोई भी मुश्किल पेश आए, मसलन जब माँ होती है, जब इनको बच्चा बीमार होता है तो ये माँ रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि इनको मोहब्बत है इस बच्चे के साथ। इसी तरह जिसके साथ भी मोहब्बत हो, मवद्दत हो, अगर वो किसी मुसीबत में है तो दिल टूट जाता है, तो आंसू निकल आते हैं। आशूरा यही है कि हमें हुसैन से मोहब्बत है। क्यों हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है? चूंकि पैगंबर ने कहा, चूंकि कुरान ने कहा। अब जब उनके साथ हमें
मोहब्बत और मवद्दत है, जब हम ये सुनते हैं कि उसी हुसैन को बेदर्दी के साथ, बच्चों के साथ जो है ना बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो हम आशिकों का दिल टूट जाता है, तो आंसू निकल आते हैं। जो ज़िला कि बड़े खुश उसलूबी से और पीसफुल तरीके से पूरा जो है आज का कि सारी प्रोसेशंस हमारे तीनों जो वांगाम से शाहू के सचिन के तीनों प्रोसेशंस अच्छे से जो इख्तिताम पजीर हो जाएं। इसमें जो हमारे यहाँ के लोग साथी हैं, हमारे जो अज़ादार यहाँ पे हैं, उन सभी ने वो भी बड़ा मुझे लगता है जो एक कहते हैं मैच्योरिटी का इजहार करते हैं। और अभी तक भी जो पूरा प्रोग्राम चला है बड़े खुशउस्लूबी से चला है, बड़ा पीसफुली गया है और यही उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रोग्राम अच्छे से होगा। पूंछ में आज तंजीम मोमिनीन के ज़ेर एहतमाम यौम आशुरा के मौके पर ताज़िया जुलूस निकाला गया। पूंछ की मंडी तहसील में निकाले गए ताज़िया जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर अज़ादारों ने सीना कुबी करते हुए शोदाए करबला को याद किया। हुक्काम की जानिब से यौम आशुरा के मौके पर पूंछ में सिविल व सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। 61 हिजरी में नवासा रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को याद करने के लिए हर साल की तरह इस बार भी तंजीमुल मोमिनीन मंडी की जानिब से जुलूस अज़ा आशुरा के मौका पर बरामद किया गया है। इस जुलूस अज़ा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम हुसैनी दुनिया आलम तक पहुँचाना है। आज के जुलूस में यहाँ पर मुख्तलिफ अंजुमनें जो हैं वो मातमी दस्ते लेकर पहुँची है, जो इमाम आली मुकाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए सीना ज़नी और नवाह ख़्वानी कर रही है। इमाम हुसैन ने जो क़याम किया वो क़याम किसी एक शख्स या एक मज़हब के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के तमाम ज़ालिमों जाबरों के ख़िलाफ़ एक बड़ा। गांदरबल के दाब इलाके में भी यौम आशुरा के मौके पर ताज़िया जुलूस बरामद किए गए, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने हिस्सा लिया। आज आप जानते हैं कि पूरे कायनात में जो है आज यौम आशुरा मनाया जा रहा है। ये सबों को पता है कि ये जो वाक़ई करबला हुआ है, ये हक और बातिल की जंग थी, जिसमें हक ने कामयाबी हासिल की, और उसी वजह से आज जो ये इस्लाम हम यहाँ देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो आज इस्लाम है वो उसी की बदौलत है, क्योंकि वाकई करबला में हक और बातिल की जो जंग थे, उस मकसद यही था कि जो हमारा दीन इस्लाम है वो बचना चाहे। और जो गलत रास्ते पर था यजीद, और यजीद ने, आपको पता है कि यजीद जो गलत हो रहा है वो हमेशा हार ही जाता है। और इंशाल्लाह आज हम जो इस्लाम दुनिया में LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज भारतीय गज़ट वजारत क़ानून ता इंसाफ से मानून तसनीफ़ का रस्म इजरा अंजाम दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत तरतीब दिए गए दफ़ात पर मुश्तमिल है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड सरबराह के बशमूल सिविल व सिक्योरिटी यानी सिविल व पुलिस महकमे जात के आला अहदेदार मौजूद रहे। सजाद गनी लोड ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह ने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। दिनों पहले अनाउंस की थी, उसके बारे में कुछ बात थी, तो मैंने सोचा मैं आपको तकलीफ दूं। हमें मालूम था कि जब भी कभी अलायंस बनेगा या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर खित्ते में, तो इसमें कुछ पार्टियां या कुछ फ़र्द ऐसे होंगे या कुछ इदारे ऐसे होंगे जिनको शायद वो पसंद ना हो। तो मैं आपके सामने डेट के हिसाब से कुछ चीज़ें डालना चाहता हूँ कि जो पहला बयान आया गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब हैं, जो पार पिछले 30 साल से हैं। पहला बयान उनसे आया, वो बारामूला के रहने वाले हैं और कन्वीनर हैं वहाँ का जो चैप्टर है हुर्रियत का, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज पेश करते हुए कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर भारत का टूट हिस्सा नहीं बनता।
BJP और RSS के नजरिया साज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जो बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर के दफ़ा 370 के मुखालिफ थे, उन्हीं की बदौलत आज कश्मीर भारत का हिस्सा बना है। वादी कश्मीर में तातीलात से मुतालिक स्कूल्स की तातीलात में तोसी से मुतालिक आज कोई हतमी फ़ैसला नहीं लिया जा सका, इस वजह से कि आज यौम आशुरा था। ताहम कल यानी 7 जुलाई को इस हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद होगा और फिर मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद तातीलात में तोसी से मुतालिक हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर में आज यौम आशुरा के मौके पर इमाम हुसैन व शहदाए करबला को पेश किया गया खराज। श्रीनगर के बशमूल दीगर अजला में निकाले गए ताज़िया जुलूस। LG मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व दीगर लीडरान ने ताज़िया जुलूसों में की शिरकत। शहदाए करबला को पेश किया खराज अकीदत। यौम आशुरा के जलसे जुलूसों का अमल में आया पुरअमन इनेकाद किए गए थे सिविल व सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। वादी कश्मीर में स्कूल्स की तातीलात में तोसी से मुतालिक 7 जुलाई को लिया जाएगा फैसला। और पूंछ में नौजवान की पुरअसरार हालत में पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।